غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ طارق بن زیاد، فاتح اندلس، عالم اسلام کا ایک درخشاں ستارہ۔ اس جوان سال سپاہ سالار کی بدولت مسلمانوں نے اندلس اور اسپین پر 800 سال حکومت کی۔ داستان کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اگلی صبح طارق کو اس حالت میں موسیٰ بن نصیر کے سامنے لایا گیا کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھ زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ اسے قید خانے سے گھوڑا گاڑی میں لایا گیا تھا تاکہ اسے اس حالت میں کوئی دیکھ نہ سکے۔ موسیٰ نے پہلا حکم یہ دیا کہ اس کی بیڑیاں اور زنجیریں کھول دی جائیں۔ تم نے میرے اس حکم کی خلاف ورزی کیوں کی تھی کہ مزید پیش قدمی نہ کرنا؟ بیڑیاں اور زنجیریں کھلنے کے بعد موسیٰ نے طارق سے پوچھا۔ وہاں طارق کے اور موسیٰ کے 4 سالار جولین اور اوپاس بھی موجود تھے۔ میرے ساتھی یہاں موجود ہیں، اس لیے مجھے کسی گواہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ طارق بن زیاد نے کہا، جس وقت آپ کا حکم میرے پاس پہنچا اس وقت اندلس کی فوج میرے لشکر کے ہاتھوں بہت بری شکست کھا کر بھاگ رہی تھی۔ آدھی کے قریب اندلسی فوج میدان جنگ میں کٹی پڑی تھی۔ یہاں کا بادشاہ راڈرک مارا جا چکا تھا۔ بچی کھچی فوج قریبی قصبوں اور شہروں میں پناہ لے رہی تھی۔ میں نے اپنے سالاروں سے پوچھا کہ اس صورتحال میں ہمیں اپنے امیر کا حکم ماننا چاہیے یا نہیں۔ ان سب نے یہی ایک رائے دی کہ ہم نے دشمن کا تعاقب نہ کیا تو وہ مختلف قلعوں میں جا کر تازہ دم ہو جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بھاگی ہوئی فوج کسی ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی اور اس سے ملک کے مختلف شہروں سے کمک مل جاتی۔ میرے اپنے لشکر کا بھی جانی نقصان ہو چکا تھا۔ آپ نے مجھے بہت تھوڑی کمک دی تھی۔ میں دشمن کو سستانے کا اور اس سے کمک ملنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ میرے ان سب ساتھیوں نے یہی مشورہ دیا۔ جولین نے اسی پر زور دیا کہ رکنا ٹھیک نہیں بلکہ رکنا نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ میں نے خود بھی پیش قدمی بہتر سمجھی اور اس سے میں نے جو فائدہ حاصل کیا میں آپ کے حضور اندلس کا دارالحکومت پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ مجھے موقع دیتے تو میں یہ صورتحال پہلے ہی دیتا، لیکن آپ نے مجھے کوڑے مارنے زیادہ ضروری سمجھے۔ تم نے جو فائدہ حاصل کیا وہ میں نے دیکھ لیا ہے، موسیٰ نے کہا، اور میں تمہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم نے مجھے اطلاع نہیں دی تھی کہ تم اس وجہ سے آگے بڑھ رہے ہو۔ اگر اطلاع دے دیتے تو میں تمہیں کمک بھیج دیتا، لیکن مجھے خود آنا پڑا۔ مجھے خطرہ نظر آ رہا تھا کہ جوش میں آ کر تم کہیں ایسے پھنس جاؤ گے کہ نکل ہی نہیں سکو گے۔ ابن نصیر، جولین نے موسیٰ سے کہا، ابن زیاد نے جو بیان دیا ہے یہ صداقت پر مبنی ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ امیر افریقہ ناراض ہوئے تو میں انہیں منا لوں گا۔ صورتحال ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ آپ کو اطلاع دینے کا ہم میں سے کسی کو بھی خیال نہیں آیا۔ ہم سب آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ معاف کرنے والا اللہ ہے، موسیٰ نے کہا۔ میں نے اسے جو کوڑے مارے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ تم نہیں جانتے جولین، اسلام کے احکام بہت سخت ہیں۔ تم نے سنا ہوگا خالد بن ولید نے دنیا کی سب سے بڑی اور خوفناک جنگی قوتوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ اسلامی سلطنت کو جو وسعت اس نے دی ہے وہ اور کوئی نہیں دے سکا، لیکن معمولی سی بات پر امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مسجد میں بٹھا کر برا بلا کہا اور دوسری بار اسے معزول کر دیا تھا۔ اتنے بڑے اور اتنے باصلاحیت سپاہ سالار کو بادشاہ بہت بڑی لغزشوں پر بھی معاف کر دیا کرتے ہیں، لیکن اسلام میں معاملہ کچھ اور ہے۔ ایسی ہی کچھ اور باتیں ہوئیں۔ طارق بن زیاد نے اپنی وکالت میں مزید کچھ نہ کہا۔ اس نے کچھ کہا بھی تو یہی تاثر دیا کہ وہ موسیٰ بن نصیر کو اپنا امیر ہی نہیں بلکہ اپنا باپ بھی سمجھتا تھا۔ موسیٰ نے طارق کو ذرا اور ڈانٹ ڈپٹ کر معاف کر دیا۔ طارق آگے بڑھا، موسیٰ کا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ ابن زیاد، تاریخ نویسوں کے مطابق موسیٰ بن نصیر نے طارق سے کہا،
एक दिन आएगा, तेरी हड्डियां कब्र में खाक हो जाएंगी, शायद तेरी कब्र का निशान भी मिट जाएगा, लेकिन जब तक उनलस इस जमीन पर मौजूद रहेगा तेरा नाम जिंदा रहेगा। इस हराजे तहसीन के बाद फिजा ऐसे बदल गई जैसे काली घटाएं छट गई हों। एक यूरोपी मौरख मुबस्सर और फ्रंग अपनी किताब फैल्कन ऑफ स्पेन का शाहीन में लिखता है कि मूसा बिन नुसैर के रवैये में ऐसी तब्दीली आई जैसे तारक बिन ज़ियाद उसका सगा बेटा हो। मूसा किसी भी नियत से उंदरस में आया था, अब उसने कुछ और ही रवैया इख्तियार कर लिया। वो शायद अपनी जात में दो हिस्सों में बट गया था। उसने महसूस कर लिया था कि तारक बिन ज़ियाद के बगैर वो मजीद फतूहात हासिल नहीं कर सकता। मूसा बिन नुसैर बहरहाल इस हराजे तहसीन का हकदार है कि उंदलस की फतह में उसका हिस्सा नुमाया है, और जब उसने इस अज़म का इजहार किया कि वो फ्रांस को भी सल्तनत इस्लामिया में शामिल करेगा, तो ऐसे नजर आने लगा जैसे मूसा शख्सियत व किरदार के लिहाज से बहुत ऊंचा चला गया हो। मूसा ने तारक को माफी देने के साथ ही उंदलस के गैर मफतूहा इलाकों की तरफ पेशकदमी का प्लान बनाना शुरू कर दिया। काबिल एहतराम अमीर तारक बिन ज़ियाद ने मूसा से कहा, मुझे मौका दें कि आपकी खिदमत में यहाँ के तोहफे पेश कर सकूं। मूसा की इजाजत से तारक ने तोहफे मंगवाए। वो तलवीरा से ये तोहफे साथ ले आया था। तारीख़ उंदलस में मुतअद्दिद मोरहों के हवाले से लिखा है कि इस कदर कीमती अशिया देखकर मूसा बिन नुसैर के चेहरे पर और आंखों में हैरतो इस्तिजाब नजर आने लगा। बेशतर अशिया सोने की बनी हुई थी और इनमें बड़े ही कीमती चमकते हुए रंगारंग पत्थर और हीरे जड़े हुए थे। ऐसी नादर और नायाब अशिया किसी शहनशाह के महल में ही हो सकती थी। तारक तोहफे दिखाते हुए कहता जा रहा था, ये आपके लिए है, ये अमीरुल मोमिनीन के लिए। आखिर में तारक ने वो मेज मूसा के आगे रखी जो तलीता से भागते हुए राहबों से मिली थी। ये सोने की बनी हुई मेज थी। इसके इर्द गिर्द और पायों में ऊपर से नीचे तक हीरे, नायाब मोती, नीलम, जुमुर्द और जवाहरात जड़े हुए थे। इस मेज के मुतल्लक मुझे अजीब बातें बताई गई हैं। तारक ने कहा, एक ये कि किसी जमाने में एक बादशाह टेटस ने यरूशलेम पर हमला किया था और ये मेज वहाँ की सबसे बड़ी इबादतगाह से मिली थी। दूसरी अजीब बात ये है कि ये मेज हजरत सुलेमान की मलकियत है। और तीसरी अजीब बात राहबों ने ये बताई है कि जो बादशाह इस मेज की मलकियत का दावा करेगा उसका जवाल भयानक होगा और वो जिल्लत और रसवाई में बेबसी और मजबूरी की मौत मरेगा। और मैं इस मेज में एक और अजीब बात देख रहा हूँ। मूसा बिन नुसैर ने मेज को चारों तरफ से देखते हुए कहा, इसके 3 पाए हैं, चौथा पाया गायब है। इसके पाए उतारे और चढ़ाए जा सकते हैं मोहतरम अमीर। तारक ने कहा, इतनी कदीम मेज न जाने कितने बादशाहों के पास और कितने मुल्कों में रही है। किसी ने एक पाया उतार लिया होगा या कहीं जाया हो गया होगा। सबने देखा कि मेज का एक पाया गायब था। देखने वालों में वो सलार वगैरह भी मौजूद थे जिन्होंने ये मेज पहले भी देखी थी। जोलियन और उपास ने भी ये मेज देखी थी। सबको याद था कि इसके चारों पाए सही सलामत इसके साथ थे। अब वो देख रहे थे कि चौथा पाया नहीं था, लेकिन इनमें से किसी एक ने भी ये न कहा कि ये मेज यहाँ आई थी, तो उस वक्त इसके चारों पाए मौजूद थे। तारीख इस सिलसिले में खामोश है कि सब क्यों खामोश रहे। उनकी खामोशी ने तारक की तायद कर दी कि मेज के 3 ही पाए थे। प्रोफेसर डोजी ने लिखा है कि सबकी खामोशी की एक वजह यह भी हो सकती है कि इस मेज के मुतल्लक कुछ मफूकुल अकल और डरावनी सी पुरइसरार बातें राहों से सुनी गई थीं। वो समझे होंगे कि चौथा पाया खुद ही गायब हो गया है। बहरहाल कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती। मैं इसके साथ इसका चौथा पाया लगाऊंगा। मूसा बिन नुसैर ने कहा, इसके लिए हीरे और पत्थर जो बाकी पायों में जड़े हुए हैं नहीं मिल सकेंगे। चौथा पाया सोने का बनवाऊंगा और मैं ये मेज अमीरुल मोमिनीन को पेश करूंगा। शहर के किसी तजुर्बाकार सुन्नार को बुलाओ और उसे कहो कि दूसरे पायों की शक्ल का चौथा पाया सोने का तैयार कर दे, जो इसके साथ लग भी सके और उतारा भी जा सके। एक वका निगार डान पास्कल उस दौर की दस्तावेजात के हवाले से लिखता है कि माले गनीमत में आए हुए सोने की कमी नहीं थी, वहाँ सोना ही सोना था। मुकामी सुनार भी मौजूद थे। सबसे ज्यादा कारीगर सुनार को बुलाकर मेज के दूसरे पाए दिखाए गए। चंद दिनों में चौथा पाया तैयार होकर मेज के साथ लग गया। कुछ ही दिनों बाद मुजाहिदीन का लश्कर अरागून की तरफ कूच कर रहा था। इस लश्कर के 2 कायद थे, मूसा बिन नुसैर और तारक बिन ज़ियाद। मूसा उम्र के आखिरी हिस्से में और तारक जवानी के आखिरी हिस्से में था, लेकिन जज्बे, वलवले और अज़म की दीवानगी के लिहाज से दोनों जवान लगते
सकते थे। वो लश्कर के साथ जिस रास्ते पर चले जा रहे थे वो कोई सहल रास्ता नहीं था, बल्कि वो रास्ता था ही नहीं, बड़ी ही दुश्वार गुजार और वसीओ अरीज वादी थी। ये अरागोन का सूबा था जिसका मरकजी शहर सारगासा था। ये शहर मूसा और तारक की मंजिल थी, मगर इस मंजिल तक पहुंचने के लिए गैर मामूली हिम्मत और इस्तकलाल की जरूरत थी। इस शहर को जाने वाला बाकायदा रास्ता बहुत लंबा था। ये कमोबेश 1 महीने की मुसाफत थी। मूसा अपने लश्कर को वादी में से गुजार कर ले जा रहा था। ये इलाका वादी अल हिजारा जैसा ही दुश्वार गुजार और खतरनाक था। इसमें मैदानी इलाके भी थे, लेकिन जंगल और ऊंची नीची टेकरियां ज्यादा थीं, गड्ढ और नाले बेशुमार, और नदियां भी बहुत थीं। बाज नदियां ज्यादा गहरी थीं। लश्कर की रसद और दीगर सामान बैलगाड़ियों और घोड़ा गाड़ियों की बजाय हचरों पर जा रहा था, क्योंकि इस इलाके से गाड़ियों का गुजारना नामुमकिन था। मुश्तरका तौर पर सारे लश्कर के लिए खाना तैयार करने के लिए बड़े बर्तन साथ नहीं लिए गए थे। हर सवार को तांबे का एक बर्तन दिया गया था जिसमें खाना पकाना था और इसी में पानी पीना था। हर सवार के पास पानी की एक छाकल थी और खुशक राशन से भरा हुआ एक थैला था। प्यादे इतना सामान नहीं उठा सकते थे। हर प्यादे के पास अपने हथियार के सिवा कुछ भी न था। सवारों को कह दिया गया था कि अपने खाने और पानी में से प्यादों का हिस्सा दें। इस लश्कर को भी वैसी ही दुश्वारियां पेश आईं जो तारक के लश्कर को अल हिजारा की वादी में पेश आई थीं। गहरी वादियां पार करते 3-4 मुजाहिदीन डूबकर लापता हो गए। जंगल में जो पड़ाव किए गए वहां चंद एक मुजाहिदीन को सांपों ने डांस कर मार दिया। बास मुजाहिदीन कमर तक दलदल में दनस गए और इनकी तरफ से रस्से फेंक कर इन्हें निकाला गया। सबसे ज्यादा सब्र आजमा और जानलेवा दुश्वारी तूफान बादल बारान ने पेश की, जो एक पूरी रात और पूरा एक दिन जारी रहा। दरख्त जड़ों से उखड़ रहे थे, बड़े मोटे टहन टूट टूट कर गिर रहे थे। 4-5 घोड़े एक दरख्त के तले खड़े थे। इन पर आसमानी बिजली गिरी और ये घोड़े मर गए। आसमानी बिजली सारे लश्कर के लिए पूरा दिन और पूरी रात मुसलसल खतरा बनी रही। बार बार ऐसी कड़क होती थी। लश्कर के पास हेमे नहीं थे। मुजाहिदीन बिजली से डरते दरख्तों के नीचे नहीं जाते थे। इन्हें मालूम था कि बिजली दरख्तों पर गिरा करती है। वो टेकरियों और टीलों की ओट में हो गए थे, लेकिन बादो बारां के इस तूफान के कहर और अताब से महफूज रहना नामुमकिन था। हच्चर और घोड़े ठठर रहे थे। इंसानों की हालत तस्वुर में लाई जा सकती है। नदी नालों में सैलाब आ गया। टेकरियों और चट्टानों के दरमियान भी बारिश के पानी ने सैलाबी कैफियत इख्तियार कर ली। मूसा बिन नुसैर, तारक बिन ज़ियाद और दूसरे तमाम सालारों की भी यही हालत थी, लेकिन वो इधर उधर पनाहें तलाश नहीं कर रहे थे, बल्कि घोड़ों पर सवार होकर अलग अलग हो गए थे और बिखरे हुए लश्कर में घूम फिर रहे थे। वो टोलियों में बटे हुए मुजाहिदीन के पास जाकर रुकते और उनके साथ हंसी मजाक की बातें करते। इनसे मुजाहिदीन के जिस्मों में तवानाई और तपश पैदा हुई जा रही थी। समुंदर तुम्हें रोक नहीं सका। मूसा बिन नुसैर बादों बरा के कहर भरे शोर में जगह जगह रुक कर और चिल्ला चिल्ला कर कहता फिर रहा था, उंदलस के दरिया और पहाड़ तुम्हें नहीं रोक सके। उंदलस की फौजों की दीवारें तुम्हें नहीं रोक सकी। तुमने यहाँ के चट्टानों जैसे किले तोड़े हैं। ये तूफान भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। हर सालार मुजाहिदीन का हौसला बढ़ा रहा था। मूसा हर किसी से ये जरूर कहता था कि मुझे देखो, मेरी उम्र देखो। इस उम्र में जिस्म बुढ़ापे से ही कांपने लग जाते हैं, लेकिन मैं यह तूफान में भी अपने जिस्म को नहीं कांपने दे रहा। ये तो कहने की बातें थी। हर कोई ठठर रहा था। अलबत्ता किसी ने हिम्मतो इस्तकलाल का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने तो जैसे अपनी रूहानी कुव्वत बेदार कर ली थी।